Once again, a very good morning to all of you. We have started chapter 3 of economics in our last class, where we have discussed about the meaning of barter system of exchange, the main problem of barter system, that was double coincidence of bond, and the main characteristics of business money, that is act as a medium of exchange, right? Then we have discussed about currency. We are currently using paper notes and coins in the form of currency, so we have discussed about it. Now we are going to discuss about deposits in bank में जो deposits होते हैं उनकी बात करेंगे. So just have a look. The other form in which people hold money as deposits is as deposits with bank. एक अदर फॉर्म की बात करें जिसमें लोगों के पास पैसा होता है अदर देन कैश, अदर देन करेंसी. This is deposits of people with bank. Now have a look. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बात करें तो हमें थोड़ा सा ही पैसा चाहिए होता है अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of month. जैसे ही मेरी सैलरी आते ही मेरे पास एक बार के लिए तो एक्स्ट्रा पैसा रहा होगा. आज के आज तो सारी सैलरी खर्च नहीं होने वाली है. So at the beginning of month, I am having some extra cash, right? What do people do with this extra cash? क्या करते हैं वो? They simply deposit it with bank by opening a bank account with their name. वो अपने नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करवा के अपना जो पैसा है वो कहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं? बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं. Now just have a look. Wait for a second. Yes. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. Bank क्या करते हैं? They accept the deposits of people. If we are having extra money, we can simply deposit it in bank account. Bank will accept our deposits and bank will give us some interest on the deposits. Now, in this way, people's money is safe with bank and it earns an amount as interest. हमारा पैसा बैंक में सेफ भी रहता है और हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में एक अमाउंट की अर्निंग भी होती रहती है. एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 4% पर एनम. यानी जितना पैसा मैं जमा करवाऊंगी उस पे मुझे एसबीआई में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 4% पूरे साल भर में, राइट? आगे देखिए. People also have the provision to withdraw the money as and when they required. अगर मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक से मनी विड्रॉ करवा सकती हूँ. मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा that I can withdraw the money whenever required. Now, since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these are called as demand deposits. याद रखना है ये आपको कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं इन आवर सेविंग अकाउंट उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है. रीजन क्या है? रीजन बीइंग दैट वी कैन डिपॉजिट, वी कैन विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन वी नीड. हमारी जब जरूरत होगी तब हम बैंक में जाके डिमांड कर सकते हैं एंड वी कैन सिंपली विड्रॉ द मनी, राइट? आगे देखिए. Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by checks instead of cash. For payment made through check, the payer who has an account with the banks makes out a check for specific amount. The check is a paper instructing the bank to pay specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी आपको देता है. ये वो फैसिलिटी है जो मनी का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करेगी. अगेन द सेम वन, दैट इट इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ व्हाट यू कैन डू. हमारा बैंक में अकाउंट है, हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा है.
अब हम बैंक जाके विड्रॉ नहीं करवा सकते, पर हमें किसी को पेमेंट करना है, वी कैन सिंपली इशू अ चेक विद हिज नेम, जिसको भी हमें पेमेंट करना है। चेक क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। चेक एक डॉक्यूमेंट है, बैंक का एक डॉक्यूमेंट, चेक बुक इशू करती है बैंक अकाउंट होल्डर को। इस डॉक्यूमेंट पे हम सारी डिटेल्स मेंशन करके ये चेक किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, और अगर उस चेक पे हमारा साइन है तो वो सामने वाला पर्सन हमारे बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट विड्रॉ करवा के ला सकता है। किस किसने चेक बुक देखी है या किस किसने चेक देखा है? चलिए निहारिका बताएंगे। निहारिका टेल अस, आपने किसका चेक देखा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोटिस की? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग निहारिका। यस मैम। मैम मैंने यस चेक देखा है, जैसे कि मैम हम किसी को पैसे देते हैं या फिर हम किसी से पैसे लेते हैं, यस तो मैम उसमें जैसे कि पापा ने किसी को पैसे देने के लिए चेक बनाया फॉर 30,000 रुपीज का, तो मैम ओके, वो चेक देखा हुआ है। बिल्कुल देखा हुआ है, वेरी गुड। चलिए, okay, I can see many of you have raised your hands. That's great. Just have a look. When your father has opened a bank account, he has received a checkbook from the account, right? बैंक से उनको एक checkbook मिली because he is having an account. उस checkbook के हर check पे check number, account number और पापा का नाम लिखा हुआ होगा। उनका नाम जरूर मेंशन होगा, अकाउंट होल्डर का नाम मेंशन होगा हर चेक पे। अब देखिए, अगर उनको किसी को भी पेमेंट करना है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी चेकबुक में एंट्री करेंगे और चेकबुक में से चेक टीआर अप करके वो चेक सामने वाले पर्सन को दे देंगे। सामने वाला पर्सन बैंक के पास जाएगा तो बैंक उस चेक को चेक करेगी, चेकआउट करने के बाद बैंक इतना अमाउंट उस पर्सन को विड्रॉ करवा के दे देगी। बाय चांस हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होगा, सपोज आई एम हैविंग अ चेक बुक, मेरे अकाउंट में 50,000 है और मैंने किसी को 70,000 का चेक दे दिया है, तो इन दैट केस चेक बाउंस हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए, एक चेक बता रखा है आपके सामने, मिस्टर साहिन का चेक है, पुराना चेक है, तो इस पे आपको नाम नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। टुमारो आई विल शो यू माय चेक, ठीक है? मेरी चेकबुक का एक चेक दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि यस, इस चेक पे नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। एंड टुडे यू कैन रिक्वेस्ट योर फादर और मदर टू शो यू अ चेक, राइट? This will be the best thing you can do. You can ask them to just show their checkbook to you. They will just show you some things and you can relate the things with your book also, right? Just have a look. सबसे पहले क्या होगा, ये थोड़ा सा पुराना पैटर्न है, चेक पे ऊपर डेट लिखी हुई होती है, किस डेट पे हमने वो चेक साइन किया, फिर किसको हम वो चेक दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, पे प्रेम कुमार, यानी प्रेम कुमार को हम पैसा देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं? 57,000। आगे ओनली लगाना जरूरी है, क्योंकि ओनली नहीं लगाएंगे तो कोई इसके आगे और अमाउंट लिख सकता है, दैट्स व्हाई ओनली लगाना जरूरी है। फिर इसको हमें फिगर्स में भी लिखना है और फिगर्स में लिखने के बाद भी हमें ये साइन लगाना जरूरी है। ये साइन लगा दिया यानी इसके आगे कोई जीरो को ऐड नहीं कर सकता, राइट? फिर इस पे लिखा हुआ होगा हमारा अकाउंट नंबर, फिर इस पे लिखा हुआ होगा कौन से बैंक का चेक है, उसकी सारी डिटेल्स, बैंक का ब्रांच कोड लिखा हुआ होगा, और नीचे लिखा हुआ होगा चेक नंबर और कोड। देखिए, चेक नंबर एरो करके दिया हुआ है, चेकबुक में 1 से लेके 01 से स्टार्ट होते हैं, आगे की 4 कोड नंबर अलग रहेंगे और फिर हर चेक पे 0 नंबर और ऐसे। फिर ये कोडिंग रहेगी जो बैंक की पर्सनल कोडिंग होती है, ताकि कोई फेक चेक ना बना सके। और यहाँ पे रहता है साइन करने का कॉलम, जिसमें हमें साइन करना होता है। मॉडर्न चेक में यहाँ नीचे नाम और लिखा हुआ होता है, जैसे मेरी चेकबुक है तो वहां मेरा नाम लिखा हुआ होगा, नीचे लिखा हुआ होगा पायल गग्गड़, यानी पायल गग्गड़ की ये चेकबुक है तो उसका नाम वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। अब देखिए, चेक के बारे में बता रखे हैं। A shoe manufacturer, Mr. Salim, has to make a payment to the leather supplier and writes a check for specific amount. एक shoe manufacturer है जिससे leather purchase किया, he has to pay him something, right? So he has written a check for him. This means that the shoe manufacturer instructs his bank
to pay this amount to the leather supplier. इसका क्या मीनिंग है कि जो शू मैन्युफैक्चरर है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है, इतना अमाउंट लेदर सप्लायर को पे करना है. What the leather supplier will do? He will just take this check. He will deposit the check in his own account. वो अपने बैंक में भी deposit करवा सकता है. Now what will happen? Money will be transferred from one bank to another in a couple of days. Within 2 days, money transfer हो जाएगा और transaction complete हो जाएगा बिना cash को use किए. Now just have a look. इसको मैं आपको एक और further elaborated example से explain कर देती हूँ. यहाँ देखिए screen पे. Mr. X है, having an account in SBI. ठीक है, और मैं हूं having an account in PNB, Punjab National Bank of India. Now, I have purchased a refrigerator from Mr. X for rupees, say 24,000. I have purchased a refrigerator from Mr. X for rupees 24,000. Now, obviously, I will have to pay 24,000 to Mr. X, right? What I have done? I have just opened my checkbook. अब मेरी checkbook कौन से बैंक की होगी? PNB की होगी कि SBI की होगी? Obviously, जब मेरा account PNB में है तो मेरी checkbook भी PNB की होगी. मैंने PNB का check निकाला, मैंने चेक पे अमाउंट लिख दी, मैंने मिस्टर एक्स का नाम लिख दिया, सारी डिटेल्स फिल कर दी और मैंने ये चेक हैंड ओवर कर दिया मिस्टर एक्स को. मैंने कहा ये लो भैया चेक. चेक पे कितने रुपीस लिखे हुए होंगे? 24,000. अब मिस्टर एक्स को नहीं पता मेरा कौन सी PNB की भी कौन सी वाली ब्रांच में है, या मिस्टर एक्स के लिए मेरी वाली ब्रांच बहुत दूर है. मिस्टर एक्स के पास 2 ऑप्शन है. नंबर 1, वो मेरी ही बैंक में जाके मेरे अकाउंट से वो चेक से पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं, बट दिस इज द लीस्ट यूज्ड ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सिंपल. मिस्टर एक्स का जिस भी बैंक में अकाउंट है वो जाएंगे उस बैंक के पास. मिस्टर एक्स गए SBI के पास. मिस्टर एक्स विल डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट, जिसमें एक बैंक के पास ड्राफ्ट होता है. उस ड्राफ्ट पे आपको कुछ एंट्रीज करनी होती है और चेक के साथ उसको स्टेपल करना होता है. बैंक ने वो ले लिया. अब वो लेके SBI ने अपने पास रख लिया. अब SBI मिस्टर एक्स को कहिएगा आप जाइए, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, PNB से SBI तक पैसा आ जाएगा और वो आपको पैसा आपके अकाउंट में शो हो जाएगा. आपके पास टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी दैट वी हैव क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट इन योर बैंक. यानी पायल और मिस्टर एक्स के बीच में कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी पायल ने मिस्टर एक्स से सामान खरीद भी लिया और उनको बदले में पेमेंट भी कर दिया. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. फॉर वंस बेटा ऑल ऑफ यू लोअर डाउन योर हैंड्स. आगे देखिए. Thus, we see that demand deposits share the essential feature of money. कि demand deposit में money का एक essential feature included है. The facility of checks against demand deposits make it possible to directly settle payments without the use of cash. ये कह रहे हैं जो check facility है, जो बैंक दे रही है demand deposit के बदले में, ये facility हमारे लिए बहुत easy बना रही है और हमारे लिए ये possible बना रही है that without using cash we can settle down payment. आजकल तो सिंपल हो गया है, इतना ज्यादा सिस्टम आप सबको पता है. पेटीएम, गूगल पे आपके घर पे यूज करते होंगे, राइट? आपने अपने भैया दीदी के फोन से, हो सकता है मम्मी के या पापा के फोन से भी पेटीएम से पेमेंट किया हो कभी उनके पास खड़े होके, राइट? कोड्स तो उन्हीं को पता होंगे, बट मे बी आपने ऐसा पेमेंट किया हो. क्या है सिस्टम? देखिए गूगल पे क्या है. आपको अपना बैंक अकाउंट गूगल पे से लिंक करना है. अब आप कहीं भी जाते हैं तो आप कोड को स्कैन कीजिए, आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ होके सामने वाले के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ये पोर्टल सारा बैंकिंग सिस्टम मैनेज करती है और ये तो क्विकेस्ट एंड स्मार्टेस्ट फैसिलिटी है जो बैंक हमें दे रही है, राइट? अभी हम डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं जो पुराना वे चल रहा है. हैव अ लुक. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute the money in modern economy. ये कह रहे हैं क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को भी पेमेंट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. इफ आई एम हैविंग डिमांड डिपॉजिट इन माय बैंक अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट यानी मेरी सेविंग्स पड़ी है मेरे बैंक में,
तो वो सेविंग मैं यूज कर सकती हूँ फॉर मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग check, right? So it will be also treated as a important part of money. Now have a look. You must remember the role that the banks play here. But for the bank, there would be no demand deposit and no payment by checks against these deposits. The modern forms of money, currency, and deposits are closely linked to the working of modern banking system. थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है इस पैराग्राफ में. सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं आपको बैंक का रोल यहाँ पे अच्छे से पता चल गया है. दैट बैंक विल टेक मनी फ्रॉम अस एंड जब भी हमें जरूरत होगी तो दे देगा. अगर चेक की बात करें तो चेक के फॉर्म में क्या होगा, बैंक हमसे हमारा पैसा डिपॉजिट कर लेगा. उसके बाद में जब भी हम किसी को पेमेंट करना चाहेंगे तो बैंक उस चेक के बेसिस पे अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. लेकिन what is written over here, just have a look. For banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits. यानी बैंक के लिए ऐसा नहीं है कि ये डिमांड डिपॉजिट्स बैंक डायरेक्टली यूज करेगी या मनी का मूवमेंट करवाएगी इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में. नो, सारा सिस्टम जो है सेंट्रल बैंक के थ्रू मैनेज होता है. जब भी हमने किसी और को चेक दिया, जैसे अभी मैंने चेक दिया था अपना मिस्टर एक्स को, राइट? I was having an account in PNB and Mr. X was having an account in SBI. तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में कि PNB में SBI वाले जाएंगे, फिर PNB से 24,000 विड्रॉ करेंगे और फिर वो 24,000 अपने अकाउंट के होल्डर, अपने बैंक में अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे. डेफिनेटली नो, ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली है. होगा क्या, हर बैंक का सेंट्रल बैंक के पास एक अकाउंट ओपन होता है. जैसे ही SBI के पास ये आई इंफॉर्मेशन कि मुझे PNB से 24,000 रुपीज लेने हैं, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जाएगी RBI के पास. RBI सिंपली PNB के अकाउंट होल्डर से 24,000 डिडक्ट कर लेगी और SBI के अकाउंट में 24,000 ऐड कर देगी. अब PNB बैंक मेरे अकाउंट से वो 24,000 माइनस शो कर देगा और SBI के पास जो 24,000 आया वो अपने अकाउंट में मिस्टर एक्स के अकाउंट में उसको प्लस में शो कर देगा. ये एक्चुअली होता है बैंकिंग सिस्टम में. आगे देखिए, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे अमाउंट ट्रांसफर होता है, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. Ramandeep, do you want to ask something? Beta, if yes, then I have unmuted you from my side twice in this class. You can ask me. Okay, Pranav, do you want to ask something? यस मैम. Yes, beta. मैम, जो आप सिग्नेचर का बता रहे थे पहले, मैम ऐसे तो कोई भी किसी के भी सिग्नेचर कॉपी कर सकता है? डेफिनेटली यस बेटा, सिग्नेचर कॉपी किए जा सकते हैं. इसके लिए हमें अपनी चेकबुक को बहुत संभाल के रखना होता है. ये चेकबुक जो है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है. अगर आपको मेरी चेकबुक मिल गई और आप मेरा मेरा साइन कॉपी कर सकते हो, राइट? आपको पता है कि मैं कैसे सिग्नेचर करती हूँ. नाउ इन दैट केस यू कैन यूज माय चेक फॉर मेकिंग पेमेंट. बट ऐसे में क्या होता है, बैंक की एक गाइडलाइन है. जैसे सपोज मेरे पास चेकबुक है, राइट? चेकबुक बैंक मुझे इशू करेगा, मेरा अकाउंट है तो मुझे ही मिलेगा. मुझे उसको बहुत संभाल के रखना है. बाय चांस मेरा कोई चेक चोरी हो गया या मेरा कोई चेक मिसिंग है, चेकबुक पे नंबर लिखा हुआ होता है, अब कोई चेक मिसिंग है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बैंक को फटाफट से इंस्ट्रक्शन दे दूं. मैं बैंक को एक एप्लीकेशन लगा के इन्फॉर्म कर दूंगी दैट माय दिस चेक नंबर इज मिसिंग. सो अगर ये चेक आपके पास आता है पेमेंट के लिए तो आपको उससे पेमेंट नहीं करवाना है. अब अगर आप मेरा साइन कॉपी करके भी वहां बैंक में लेके जाते हो चेक तो उससे पेमेंट नहीं होगा क्योंकि बैंक के पास एक इंफॉर्मेशन है. इज इट ओके प्रणव? यस मैम. ऑल थैंक यू मैम. Okay, Pranav. Ramandeep, once again, I'm unmuting you from my side. If you want to ask something, unmute yourself.
Okay, beta, I'm not getting your voice. You can call me after class. I will clear out your query. Now just have a look. यहाँ तक if anyone is having any doubt, you can ask me. हमने कुछ simple topics पढ़े. सबसे पहले that our life evolves around money. Then after we have discussed that before money there was barter system of exchange having the problem of double coincidence of want. Then money was invented by Britishers in India. Monetary system came with the help of Britishers only, because of Britishers only, right? Then after we have discussed that money is the basic medium of exchange. Then we have discussed about the currency that we are using. Then we have discussed about the demand deposits in our bank accounts. Now we are going to discuss about the loan activities of banks, how banks are giving loans, right? Just have a look. पहले मैं आपको सिंपल सा पैटर्न समझाती हूँ. देखिए हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है. Have a look. ये बैंक है. हम सब इस बैंकिंग सिस्टम में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, राइट? बैंक बदले में हम सबको देती है कुछ इंटरेस्ट, माइनर सा. अब हम में से किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो भी तो हम बैंक के पास ही जाते हैं लोन लेने के लिए. तो बैंक ने ये जो पैसा हमारा डिपॉजिट किया है, इसी पैसे से बैंक आगे लोगों को लोन भी देती है. जिसको भी जरूरत होती है उससे कुछ असेट्स मॉर्गेज रखती है, यानी कुछ असेट्स को सिक्योरिटी के फॉर्म में मॉर्गेज रखती है और बदले में लोगों को लोन दे देती है. इस लोन के अगेंस्ट लोग बैंक को देते हैं इंटरेस्ट. बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है. अब लोन कहाँ से दिया? जो पैसा हमने और आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसी पैसे से बैंक ने हमको लोन दे दिया. हो सकता है मैंने डिपॉजिट करवा रखा है, आप सबने डिपॉजिट करवा रखा है, हमने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, राइट? और फार्मर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे की जरूरत है तो उन्होंने हो सकता है बैंक से लोन ले रखे हो. तो ये सारा सिस्टम चलता है बैंकिंग सिस्टम. बैंक का वर्क ही यही है. अगर बात करें व्हाट इज अ बैंक, तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल. बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है and use the money for lending to other people. यही पैसा यूज करती है दूसरे लोगों को लोन देने के लिए. अब खास बात ये है कि जो इंटरेस्ट बैंक लोन पे लेती है उसकी रेट ज्यादा होती है और जो इंटरेस्ट बैंक हमें हमारे डिपॉजिट्स पे देती है उसकी रेट काफी कम होती है. तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है ये होता है बैंक का प्रॉफिट. ये डिफरेंस से बैंक प्रॉफिट अर्न करता है. अब इसको आपकी बुक से रीड आउट करते हैं, राइट? जस्ट हैव अ लुक. Let us take the story of bank further. What do the banks do with the deposits which they accept from public? क्या करती है बैंक उस पैसे का जो हमने और आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया? There is an interesting mechanism to work here. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. हम सब ने जो डिपॉजिट करवाया उसका एक छोटा सा प्रोपोर्शन बैंक अपने पास रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, so that whenever we go to withdraw some money तो बैंक हमें पैसा दे सके, राइट? आगे देखिए. For examples, bank in India these days hold about 15% of their deposits as cash. बैंक के पास टोटल जितना भी पैसा आया डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक ने उसका 15% रख लिया साइड में in the form of cash. Now, why this is kept? Just have a look. This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. ये हमने इसलिए रखा है ताकि कोई दिन अगर कोई डिपॉजिटर मनी विड्रॉ करने आ जाता है then the bank will be capable to give them money. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. ये कह रहे हैं एक दिन में तो थोड़े से ही डिपॉजिटर्स जाएंगे. बैंक में अगर 100 लोगों के अकाउंट्स हैं तो एक दिन में हो सकता है 10 लोगों को कैश की जरूरत पड़े. वो भी सारा का सारा नहीं जितना उन्होंने डिपॉजिट करवाया उसका थोड़ा सा हिस्सा, राइट? तो बैंक अगर अपने पास थोड़ा सा कैश रखेगी तो भी वो मैनेज कर पाएगी. नाउ जस्ट हैव अ लुक.
Banks use the major proportion of deposits to extend loans. There is a huge demand for loan for various economic activities. बैंक ने मेजर प्रोपोर्शन तो यूज कर लिया है उस डिपॉजिट का फॉर गिविंग लोन्स टू पीपल, राइट? लोन की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. नाउ जस्ट हैव अ लुक, आगे क्या दिया हुआ है. We shall read more about this in the following sections. आगे पढ़ेंगे. And keep it in your mind that in your higher studies, class 12th, अगर आपके पास economics रही, if you will opt humanities और commerce, तो आपके पास economics होगा. उसमें ये same चीजें repeat होंगी, right? अभी देखिए यहाँ पे. Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of people. बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स को यूज करता है ताकि वो लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड्स ऑफ दीज फंड्स. बैंक एक मीडिएटर बन जाता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनका और जिनको पैसे की जरूरत है उनके बीच